بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. پاکستان کی سیاسی صورتحال، پاکستان کا سیاسی منظرنامہ. کل جو دن گزرا 15 جماعتی حکمراں اتحاد کے لیے یہ بدترین دن تھا. ان کے لیے ان کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا ہے، اور جو کچھ ان کی پلاننگ تھی، جو سازشیں تھیں، جو تانے بانے تھے، وہ سب کے سب کل ملیا میٹ ہو گئے. اور وہ ملیا میٹ ہوتے پوری دنیا نے دیکھا. کل حکمراں اتحاد کی صفوں میں کیا ہو رہا تھا، کتنی بے چینی تھی، صف ماتم بچھا ہوا تھا. اس کی میں ڈیٹیلز آپ کو بتاتا ہوں آگے جا کے، کیونکہ بہت ہی اہم ترین ہوا ہے. اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے، جو عمران خان کرش پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، جو پاکستان تحریک انصاف کو مائنس کرنا چاہتے ہیں، جو اس کو کرش کرنا چاہتے ہیں، اور جن کا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی بھی عدالت میں، کسی بھی مقدمے میں لے جا کے سزا سنائی جائے اور ان کو انتخابات سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے، ان کے لیے کل کا دن بہت ہی برا تھا. اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن سب سے پہلے ایک ریکویسٹ کروں گا میں آپ سے کہ میں نے عمران خان صاحب کا ایک انٹرویو کیا. وہ انٹرویو اس سے پچھلی والے ویڈیو میں اور میرے یوٹیوب چینل کی ٹائم لائن پہ موجود ہے. وہ ضرور سنیے گا، کیونکہ وہ بہت ہی اہم ترین انٹرویو ہے اب تک کا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بلکہ میرے جتنے بھی دوست ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں. مجھے بہت زیادہ اس کی طرف آیا ہے، فیڈ بیک آیا، بہت اچھا فیڈ بیک آیا. اور یہ بہترین ایک انٹرویو ہے. اس میں ہر اس سوال کا جواب پوچھا گیا ہے جس کے سوال پوچھنے پہ پابندی ہے. لیکن آپ ضرور سنیے گا، میں اتنا ہی کہوں گا. آگے بڑھتے ہیں. کل جمعۃ المبارک گزر گیا، اور جمعۃ المبارک پہ جی جو سب سے پہلے دو جگہوں پہ عمران خان صاحب کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی ہے کل. اور یہ میں سمجھتا ہوں عمران خان کی نہیں، یہ پاکستان کے عوام کو عزت بخشی ہے. پاکستان کے عوام جس کرب میں مبتلا ہیں پچھلے 14 مہینوں سے، یہ ان کو عزت ملی ہے. اور یہ 14-25 کروڑ عوام کی فتح ہے جو کل ہوئی ہے. نمبر 1 2-3 باتیں. نمبر 1 تو یہ کہ کل قرآن مجید کی حرمت کے لیے، اور جو قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا، قرآن مجید کی حرمت کے لیے ایک ریلیاں نکالی گئیں اور احتجاج کیا گیا، جو کہ قرآن مجید کو نظر آتش کیا گیا نعوذ باللہ اس کے خلاف. اور پوری دنیا کی توجہ حاصل کرنے کے لیے ایک بھرپور قسم کا احتجاج پاکستان بھر میں ہوا. اور اس احتجاج کی کال جو ہے وہ سابق وزیر اعظم عمران خان نے دی تھی. یہ واقعہ ہو گیا تھا اور اس پہ سخت ترین رد عمل آنا چاہیے تھا، لیکن حکومت کی طرف سے بدقسمتی سے حکومت کی طرف سے ایسا رد عمل نہیں آیا، بلکہ اس کو صرف ایک بیان تک محدود رکھا گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب نے آگے بڑھ کر اس ایشو کو ٹیک اپ کیا، قوم سے خطاب کیا، اور جمعے کو یعنی کہ جو دن گزر گیا یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا. اور پھر پاکستان تحریک انصاف نے پورا ایک شیڈول جاری کیا. ہر شہر میں، ہر تحصیل میں، ہر ضلع میں، ملک بھر میں جو لوگ ہیں وہ نکلے. ریلیاں، احتجاجی جلوس نکالے گئے اور اپنی پریزنس کا ثبوت فراہم کیا. دو باتیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب کی کال پہ بہت زیادہ لاکھوں لوگ پاکستان کی سڑکوں پہ تھے کل. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خوف کا بت تھا وہ ٹوٹا ہوا تھا. 9 مئی کے بعد پاکستان میں اس وقت انڈکلیئرڈ مارشل لا ہے، انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ ہے، اور لوگوں کو جس حال میں پہنچا دیا گیا ہے، خوف و ہراس کی ایک فضا ہے. اور سیاسی مخالفین کو جس طریقے سے 15 جماعتی حکمراں اتحاد ان پہ ظلم کر رہا ہے، خواتین پہ ظلم کیا جا رہے ہیں، جیلوں میں قید ہیں 10,000 سے زیادہ سیاسی قیدی. تو اس کے بعد یہ پہلا احتجاج تھا، اور پاکستان کے عوام نے ایک بار پھر خوف کے بت توڑے اور وہ باہر نکلے، اور باہر آ کے انہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. لیکن ہوا یہ کہ اس احتجاج کو پاکستان کے ذرائع ابلاغ نے اس کو نہیں دکھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوپر سے حکم حاکم تھا کہ عمران خان صاحب کی کسی قسم کی کوئی ایکٹیویٹی، پی ٹی آئی کی کوئی ایکٹیویٹی آپ نہیں دکھائیں گے. ہاں، باقی ساری سیاسی جماعتوں کو آپ دکھا سکتے ہیں. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی لگی ہے، اور نہ ہی پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہے، نہ ہی عمران خان صاحب پہ کوئی پابندی لگی ہے، یعنی کہ ان پہ کوئی سزا ہوئی ہے، نہ کسی عدالت نے، نہ کسی اور قانونی لیگل فورم سے. لیکن اس کے باوجود ایک حکم حاکم ہے جسے میں کہتا ہوں انڈکلیئرڈ ڈکٹیٹرشپ اور انڈکلیئرڈ مارشل لا. اس کی وجہ سے انہیں ٹی وی پر نہیں دکھایا جا سکتا. اور اس کے بعد مزید طرفہ تماشا کل یہ ہوا، ایک تو پاکستان کے عوام باہر نکلے، اور زمان پارک بھی کل دوبارہ پھر زمان پارک کی رونقیں بحال ہوئیں، اور وہی لاہور کے عوام
जिन पे जुल्म सितम करके जिनको दबाने की कोशिश की जा रही थी, वो फिर ज़मान पार्क पहुंचे और वहां पे उन्होंने अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया और इमरान खान साहब के साथ इजहार मोहब्बत भी किया। तो ये तो एक पहलू है। दूसरा जो पहलू है बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ है, जो दूसरा हुकूमत के साथ कल हैंड हुआ, हाथ हो गया, वो है इमरान खान साहब पे। आपको मालूम है कि बेशुमार किस्म के मुकदमात हैं। कभी उनको कहा जाता है मिलिट्री कोर्ट से आपको सजा दिलवाएंगे, कभी कहते हैं सजा से दहशतगर्दी की सजा, अदालत से सजा सुनवाएंगे। वो कहते हैं फैसला हो चुका है, बस अब तो सजा होनी है। फैसला हो चुका है, फोरम कोई भी हो, सजा हो जानी है, बस उनको उठा के हमने बाहर फेंक देना है इलेक्शन प्रोसेस से। तो ये दुनिया तस्लीम नहीं कर रही, और दुनिया इसलिए तस्लीम नहीं कर रही कि दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हो रहा है, इंसानी हकूक किस तरीके से पामाल किए जा रहे हैं। इवन जो इमरान खान साहब के मुखालफीन हैं बाहर, इंटरनेशनल प्लेयर्स जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते, वो भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसानी हकूक, बदतरीन इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, आइन को पामाल किया जा रहा है, अदालतों के फैसलों का एहतराम नहीं किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब तक सियासी अदम इस्तेहकाम है तब तक पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता। तो लिहाजा इस पे भी कल जो एक बुरा दिन साबित हुआ वो था IMF के साथ पिछले 14 महीनों से इस वक्त जो इसहाक डार साहब जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नवाज 15 जमातें मिलकर, मैं 15 जमातें इसलिए कह रहा हूँ कि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है नई जमात है, वो भी इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। वो कोई बाहर नहीं बैठी, वो कोई अपोजिशन की जमात नहीं है। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी IPP, जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब, उनकी जमात इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। और वो इस तरीके से शामिल है कि नंबर 1 कि उनके 2 अहम रहनुमा जो हैं वो इस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की काबीना में शामिल हैं, एक ओन चौधरी साहब और एक नौमान लंगड़ियाल साहब। ये 2 बाकायदा तौर पर शामिल हैं, और इसलिए ये नहीं कह सकते कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कोई अपोजिशन की जमात है या कोई ऐसी है जिसका हुकूमत से ताल्लुक नहीं। दूसरा एक और जो कि लोटा ग्रुप है, वही लोटा ग्रुप इस वक्त कौमी असम्बली में वो अपोजिशन के बेंचों पे लीडर ऑफ अपोजिशन बने हुए हैं। वो भी हुक्मरान इत्तेहाद में ही शामिल है, वो कोई अपोजिशन नहीं है, वो भी हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल है। तो इसलिए आप जितने भी कह रहे हैं ये 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद जो है वो ये काम कर रहा है। जिस जो सूरत हाल, तो उन्होंने IMF के साथ बड़ी तगदौ के बाद एक स्टैंड बाई अरेंजमेंट हुआ है। कल हुआ ये कि IMF की टीम वो ज़मान पार्क पहुंच गई, और न सिर्फ ज़मान पार्क पहुंची, वहां पे एक अहम मीटिंग हुई, और उस मीटिंग की सदारत चेयर कर रहे थे इमरान खान, जिन पे बेशुमार मुकदमात दर्ज किए हुए हैं और जिन पे कातिलाना हमला भी हो चुका है। तो वो चेयर कर रहे थे, और उनके साथ शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे थे, और उनके साथ IMF की अहम जो है ऑफिशियल बैठी थी। उसके बाद जो जूम पे उन रहनुमाओं को लिया हुआ था जिन तमाम के तमाम रहनुमा उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। इमरान खान साहब चेयर कर रहे थे इस इजलास की, और उसमें थे इमरान खान साहब के अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब, उन पर भी मुकदमात दर्ज हैं, हमाद अदर साहब मुकदमात दर्ज हैं, शौकत तरीन मुकदमात दर्ज हैं, उमर अयूब खान पे मुकदमात दर्ज हैं, डॉक्टर सानिया निश्तर बची हुई हैं, शिबली फराज साहब पे मुकदमा दर्ज है, तैमूर झगड़ा पे मुकदमात दर्ज हैं, और मुजम्मल असलम शामिल थे, मुजम्मल असलम बचे हुए हैं। बाकी सब पे इनके खिलाफ इस वक्त जो 15-16 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद है उन्होंने मुकदमात दर्ज करवाए हुए। लेकिन IMF की टीम इमरान खान साहब के पास ज़मान पार्क में पहुंच गई और उनसे मुलाकात की, और उनको स्टैंड बाय अरेंजमेंट जो किया है उस पे उन्हें एतमाद में लिया, ब्रीफ किया, और इमरान खान साहब से उनकी गुफ्तगू सुनी। फिर उसी वक्त IMF की जो प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिका में होती है उनके साथ गुफ्तगू की इमरान खान साहब ने, और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, और बड़े धड़ल्ले से दिया। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक इस मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आ सकता, और जब तक पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब नुमाइंदा हुकूमत हकीकी नहीं आएगी उस वक्त तक पाकिस्तान में किसी किस्म की कोई रिफॉर्म्स नहीं की जा सकती। लिहाजा ज़रूरी है कि पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम पहले लाया जाए, फिर मुआशी इस्तेहकाम की तरफ जाया जाए। ये $3 अरब आप दे भी देंगे तो $3 अरब के बाद उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि सिर्फ एक साल के अंदर चंद महीनों में, बल्कि साल भी नहीं चंद महीनों में $7 अरब का हमें नुकसान हुआ सिर्फ दो मदों में। नंबर 1 एक्सपोर्ट्स हमारी गिर गई, नंबर 2
रेमिटेंस हमारी गिर गई, जो बाहर से ज़र मुबादला ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं वो इसलिए कि इसहाक डार साहब की करामात की वजह से, कि उनकी माशाल्लाह से बल्कि अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए कि उनकी ऐसी पॉलिसियाँ हैं जिसमें सिवाय कबाहत के और तबाही के और कुछ नहीं था। लिहाजा इमरान खान साहब से IMF की टीम की मुलाकात, IMF के बल्कि सीनियर ऑफिशियल्स, उनकी प्रेसिडेंट से उनके साथ रब्ता होना, गुफ्तगू होना, इस बात की गमाजी करता है कि आलमी बिरादरी, आलमी इदारे, इंटरनेशनल प्लेयर्स वो इमरान खान साहब के खिलाफ जितना भी सियासी इंतकाम हो रहा है वो नहीं मान रहे, और उनको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक अहम सियासी प्लेयर है और सबसे बड़ा मजबूत सियासी प्लेयर है, और इसलिए उनके पास जाना पड़ा। तो मैं सिर्फ इतना अर्ज करूंगा ये सारी गुफ्तगू कि पब्लिक को आपने देख लिया, जुमे को वो सड़कों पे थी और उनके एहतजाज पे दूसरी जमातों का जो एहतजाज हुकूमत ने उनके नक्शे कदम पे चलते हुए शहबाज शरीफ साहब ने भी ऐलान कर दिया था, तो उनकी एहतजाज की रैलियां भी देख लें और इमरान खान साहब की कॉल पे जो है वो भी देख लें, तो उससे फ़र्क साफ जाहिर हो जाएगा और उससे काफ़ी परेशानी पाई जाती है। हमारे ख़ास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप जो उनको रिपोर्ट गई है, वो रिपोर्ट यही गई है कि जनाब पाकिस्तान के अवाम जो हैं इमरान खान की कॉल पे सड़कों पे निकले हैं और उन्होंने भरपूर एहतजाज किया है और भरपूर उनकी नुमाइंदगी थी, शिरकत थी पाकिस्तान के अवाम की। लिहाजा ये जहन से अगर निकाल दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है कि ये जो मुकदमात दर्ज करके, सैकड़ों मुकदमात दर्ज करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और दीगर उनके जो काबीना के अरकान है सब पे सब, और फिर 10,000 सियासी कैदी, ये तब तक सूरत हाल मामूल पे नहीं आएगी जब तक सियासी आज़ादियाँ लोगों को बहाल नहीं की जाती, शहरी आज़ादियाँ बहाल नहीं की जाती, तब तक ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा ये दो बातें थी मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ और दोनों ही इम्पोर्टेंट बातें थी। लिहाजा अब हमारे हुक्मरानों को और ख़ास तौर पे ताकतवर लोगों को ये सोचना चाहिए, हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट को सोचना चाहिए कि वो किस तरफ जा रहे हैं, सिचुएशन को किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं और उसकी वजह क्या है, क्या मजबूरी क्या है। आखिर जिन लोगों जिन पार्टियों को, जिन रहनुमाओं को पाकिस्तान के अवाम पसंद नहीं करते, वो उनको, और वो उसमें वजह यह है कि खुद मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट, मिलिट्री लीडरशिप वो पिछले जो 40 साल से वो कहते रहे हैं, वो कहते हैं कि मुमकिन नहीं है कि आप 40 साल से बात कह रहे हैं और उसके बाद अचानक आपको ख्याल आया कि नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, ये मुमकिन नहीं है। लिहाजा कल का जो दिन गुजर गया जी वो इमरान खान साहब के लिए इंतहाई अच्छा और हुक्मरान इत्तेहाद के लिए इंतहाई बुरा और उनके लिए सफ़े मातम का दिन था। तो बहरहाल अल्लाह ताला जी जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे ज़िल्लत दे, अल्लाह ताला के इख्तियार में सब कुछ, ज़िंदगी, मौत, इज्जत, ज़िल्लत, रिज़्क। तो ये समझना चाहिए, ये इस पे गौर करना चाहिए कि इंसान अक्ल कुल नहीं है, कुन फयाकुन सिर्फ अल्लाह ताला का इख्तियार है। आप जो मर्जी प्लानिंग कर लें, जो मर्जी साजिशें कर लें, तो होना वही है जो अल्लाह ताला ने चाहा। तो बेहतर यही है कि एक दफ़ा फिर सारे के सारे लोग मिल बैठें और मिल बैठ के इस मुल्क के मसाइल को आगे बढ़ाएं। और ये जो मीडिया पर पाबंदियां हैं, इमरान रियाज हमारे भाई जो हैं वो लापता हैं, पूरे 2 महीने हो गए हैं और उनको नहीं रिहा किया जा रहा, उनको घर नहीं भेजा जा रहा, ये सारी की सारी चीज़ें बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जा रहा है और इससे कोई इज्जत में इजाफा नहीं हो रहा, इसमें लोगों में कोई खौफ नहीं पैदा हो रहा, डर नहीं पैदा हो रहा, बल्कि वो नफरत में तब्दील हो रही हैं चीज़ें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।